Hello students, I hope you are doing well. I am Pramod Chand Joshi from HMJ SV Inter College. Today we shall start chapter 1 integer exercise 1.4. Question number 1 is evaluate each of the following. First question is minus 30 divided by 10. Minus 30 division is the reciprocal of multiplication. So इसका reciprocal 10 reciprocal 1/10. So 10 3 जा 30, 3 multiply by 1, 10 3 जा 30, 3 1 जा minus 3, 3 1 जा 3, minus 3. You will get minus 3. Now second B part. This was A part. B part 50 divided by minus 5. Reciprocal of minus 5 is 1 upon minus 5, and if you will take minus sign in numerator in a standard form, 1 upon 5. 5 10 ja 50, 10 multiply by minus 1, that is minus 10. Now C part minus 36 divided by minus 9. The reciprocal of minus 9, reciprocal of division is the reciprocal of multiplication. 1 upon minus 9, and minus 9 you can take in numerator. 1 upon 9, 36 multiply by minus 1, that is 36 upon 9, that is 4. Now D part minus 49 divided by 49. Minus 49, reciprocal of 49, 1 upon 49, 49 1 ja 49, minus 1 multiply by 1, that is minus 1. Now one more question. E part E part 13 divided by minus 2 plus 1. First of all, you will, for bottommost rule, you will solve bracket, then division. Minus 1 plus 1, minus 2 plus 1, that is minus 1. Minus 1, and reciprocal of minus 1 is 1 upon 1 minus, that is minus 30. 30 multiplied by minus 1, that is minus 30. Students, question number 2, verify that A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus A divided by C. तो ये प्रूव करना है, और A की वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट पार्ट है. A part is A is minus 12, A equal to minus 12, and B equal to minus 4, C equal to plus 2. Plus 2, this is given value. Now see left hand side, A divided by B plus C. First of all, you will solve left hand side and you will put the value of A, B and C. A, B and C. A is minus 12. A is plus 12. Sorry, not minus 12, plus 12. B is minus 4 and C is 2. A is plus 12. 12 divided by B. B equal to minus 4. So minus 4 plus 2. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व द ब्रैकेट. ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे. देखिए
ये समझ में आ रहा होगा आपके। -4 + 2 12 डिवाइडेड बाय -2, तो -2 आ जाएगा यहाँ पर 4 में से, और ये अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ग्रेटर साइन आएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय -1/2, रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। तो 2 6 12 -6 आ गया। अब राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड बच्चों आ रहा समझ में? देखिए राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड ये है, तो इसको लिख लेंगे a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। अब नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। a, b, c की वैल्यू रखेंगे। a is 12 here, b is -4 and plus a is 12 and c is 2। now 4 से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। 4 3 जा 12 एंड माइनस साइन -3, या ऐसे भी कर सकते हैं 2 द रेसिप्रोकल ऑफ और -1/4, 4 3 जा 12 ऐसे कर सकते हैं, प्लस 2 से 12 में डिवाइड कर दीजिए तो 6 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा ये प्लस का 3 आ जाएगा। अब यहां देख रहे हैं आप बच्चों, यहां पर देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, -6 आया, और राइट हैंड साइड क्या आया, प्लस का 3 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही प्रूफ करना था, ये इसके इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, यही प्रूफ करना था। हैंस वेरीफाइड। तो ये बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट 369 divided, you have to fill the blanks here, इक्वल टू 369। तो ये सेम नंबर कब आएगा, जब हम 1 से डिवाइड करेंगे। बी पार्ट -75 डिवाइडेड बाई इक्वल टू -1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी -75 से डिवाइड करेंगे तो ये 75 1 जा 75 -1 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए सी पार्ट 206 है, 206 डिवाइडेड बाई इक्वल टू यहां पर 1 लाना है, तो 1 लाना है, तो सेम नंबर -206 से ही डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब नाउ डी पार्ट -87 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 87। तो ये -1 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 87 प्लस का आ जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है आपके? अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर a, b such that a divided by b equal to -3। तो जैसे आपका 1 पेयर इज 6 and -2, because 6 divided by -2 is -3, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। ऐसे आपके पेयर अपने आप लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं एक पेयर, जैसे 1 हो गया 9 डिवाइडेड बाई -3, तो 3 3 या 9 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और दूसरा पेयर, तो पेयर क्या हो जाएगा, ये आपका 9 और -3 हो जाएगा। अब दूसरा पेयर लिख सकते हैं, जैसे 12, तो 4 हो जाएगा, -12 और 4 हो गया, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12। और अगला पेयर भी आप लिख सकते हैं, 15 है, -15, 5 3 जा 15। अगला पेयर आप लिख सकते हैं 18, -18, 6
और भी 1 2 3 4 एक और लिख सकते हैं 21 और -7, तो 7 से -7 से 21 में डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट -3। तो ये आपके ऐसे पेयर, आप कितने भी पेयर ले सकते हैं, यू कैन राइट मैनी पेयर्स। डियर स्टूडेंट, नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 5। द टेम्परेचर एट नून वाज 10 डिग्री above zero if it decreases at the rate of 2 degree per hour until midnight. At what time would be the temperature be 8 degree below zero? What would be the temperature at midnight? तो टेम्परेचर नून में 10 डिग्री above zero, जीरो से 10 डिग्री ज्यादा है और it decreases at the rate of 2 degree per hour until midnight. midnight तक 2 डिग्री पर आवर से कम होता जाता है. At what time temperature would be 8 डिग्री below zero. तो difference in temperature 10 degree to 8 degree Celsius, -8 डिग्री सेल्सियस बिलो. तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 10 प्लस 8 इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस. ये बात समझ में आ गई होगी. 10 से 8 तक आने का 18 डिग्री सेल्सियस टोटल टेम्परेचर डिक्रीज होना है. 18 टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है. तो आप इसको नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो आपका 10 डिग्री अबव जीरो, जीरो से 10 डिग्री यहाँ पर है, 10 डिग्री सेल्सियस है. और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. तो यहां से यहां तक आप काउंट कर लीजिए. यहाँ पर 10 यहाँ तक हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 डिग्री सेल्सियस टोटल टेम्परेचर डिक्रीज होना है. तो ये हमने 10 में से -8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 18 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर डिक्रीज 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीजेज decreases 2 degree Celsius equal to 1 hour. Temperature decreases 2 degree Celsius in 1 hour. Temperature decreases 18 degree Celsius, क्या हो जाएगा 18/2, that is 9 hour. तो 9 आवर में 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा. टेम्परेचर डिक्रीजेस 18 डिग्री सेल्सियस 18/2, दैट इज 9 आवर. 9 आवर में 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा. अच्छा, तो टाइम क्या होगा? व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो जीरो? टाइम द टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री बिलो. टाइम यहां पर लिख लेंगे, टाइम the temperature would be 10, the temperature would be 8 degree below zero, 8 degree Celsius below, equal to 12 hour. 12 नून है प्लस 9 आवर और हो गए, तो कितने हो गए 21 आवर हो गए. 21 आवर का मतलब आपका 9 PM. तो ये रात को 9 बजे ये टाइम हो जाएगा इसमें. अब यहाँ पर अगला एक कोई पार्ट और है इसमें. एक पार्ट है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? टेम्परेचर एट मिडनाइट नाइट इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस पहले है, और मिड नाइट को कितने 12 नून से कितने आवर हो जाएंगे 12 आवर. तो 2 डिग्री सेल्सियस आपका डिक्रीज हो रहा है. तो आपका
2 इतना 2 मल्टीप्लाई बाई 12 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो 10 माइनस 24 ये सेल्सियस है, ये आपका माइनस 24 ये माइनस का है, ये 14 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर एट मिडनाइट माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। Now question number 6. In a class test, plus 3 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. First, Radhika scored 20 marks. If she has got 12 correct answer, how many questions has she attempted incorrectly? तो दूसरा वाला पार्ट है, मोहनी scored minus 5 marks in this test. Though she has got 7 correct answer, how many question has she attempted incorrectly? तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए marks given for 1 correct answer, marks given marks given 6%, marks for correct answer equal to 3. मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए 1 दिए गए, मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर, मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट, 1 करेक्ट आंसर के लिए, तो 12 करेक्ट आंसर के लिए कितने हो जाएंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 36। अब है राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका ने कितने मार्क्स स्कोर किए, राधिका स्कोर इक्वल टू 20 मार्क्स, राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए। मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू, तो कितने हो जाएंगे, 20 माइनस 36 दैट इज माइनस 16, माइनस 16 मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट 1 इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स ऑब्टेन्ड for 1 incorrect answer equal to minus 2. So number of incorrect answer incorrect question equal to minus 16 upon minus 2 that is 8। तो आपके यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिए गए, करेक्ट आंसर के लिए 3 और 12 क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो गए, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36। और राधिका ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, राधिका ने 20 मार्क्स ऑब्टेन किए। तो मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए, तो 20 माइनस 36 तो माइनस 16 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए हुए। तो मार्क्स ऑब्टेन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू माइनस 2। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 16 अपॉन माइनस 2 दैट इज 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन उसके इनकरेक्ट हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट यू विल डू बाय योर ओन, अपने आप कर लेंगे दूसरा पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from the 10 meter above the ground level,
how long will it take to reach minus 350 मीटर। तो आप देख रहे हैं ये 10 मीटर अबव ग्राउंड से और ये 350 मीटर तक नीचे तक जाना है, 10 मीटर अबव है। तो टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और बाई mine shaft, total distance covered by mine shaft equal to 10, यहाँ पर 10 है, 10 माइनस 350, कितना हो जाएगा 10 प्लस 350 दैट इज 360 मीटर। 350 मीटर यहाँ डाउनवर्ड्स को है और 10 मीटर ये है, तो 360 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इतनी कवर कर ली। तो और इसमें टाइम टेकन टू कवर distance of 6 meter equal to 1 minute. So 6 meter distance 1 minute. Time taken to cover distance of 300